Morning student, how are you all? Hope you all are very great. So today I am going to start a very beautiful poem, and this poem basically it's given in the chapter The Reach for the Top, and the title as On Killing a Tree, and it's written by Jeev Patel. So basically Jeev Patel, he is an Indian poet, and basically this poetry on killing a tree, it's a very sensitive poem. I hope you will get definitely a very good message from this particular poem, and you love it actually. Let's start. So on killing a tree by Jeev Patel, this is the first part of this poetry. So, on killing a tree, you must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? This is a question asked by Chief Patel. Ki they can kill a tree means actually we can kill a tree. Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. So basically on killing a tree tell us that only cutting the branches or cutting its stems, it's not enough to kill a tree. We needed to cut out the root and dry it in the sun, so that it is totally destroyed. Otherwise it's not destroyed. It's just like we just give them pain, that's it, nothing else. So on killing a tree, introduction to the chapter. So basically, let's see the introduction of the chapter. The poem on killing a tree has taken from Jeev Patel anthology named poems. So basically, anthology like a collection of poems. So जो जीव पटेल की जो पोइट्री का कलेक्शन था उसमें से हमने ये पोइट्री ली है, that is on killing a tree. So the poem is a graphic picture of man's cruelty towards a tree. So basically in this poetry we will see कि how man is cruel और उनकी cruelty show करी है towards the tree, towards the nature, which symbolizes nature. So the poet gives us step instructions on how to kill a tree and make us realize that killing a tree is akin. Is akin means it's like to murdering a human being. Like understand. So basically poet एक तो step by step हमें clear करेंगे कि how we kill a tree means अभी just मैंने थोड़े पहले आपको बताया कि just not only cutting the branches or cutting its stem, it's not enough to kill a tree, right? We need to cut the root and dry it in the sun. That's how we kill the tree, right? So it is like the akin or to murdering means it is like to murdering a human being. Whenever we cut the tree, it exactly like when somebody murder some human being. All right. So it also refers to the destructive nature of humans and the indestructibility of nature. Indestructibility means नाश जब हो जाता है ना नेचर का, वो हम बेसिकली करते हैं थ्रू these kind of action when we cut the tree by jab and something, by knife or some jab and some axe and all right. So this is the basically लाइंस जो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर पोएम. So let's see the first stanza. Okay, let's see the first stanza. It takes much time to kill a tree, not a simple jab. So here the word jab. Jab means jab is like a sudden rough blow. When we just blow or when we just hit something, right, with the jab. So it's like it's take much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife. एक simple jab knife की जो है वो ही tree को नहीं मारती. Will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it. Basically,
जब हम देखते हैं कि जो ट्री है इट्स ग्रोथ स्लोली राइट, एंड इट्स कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स ही ईट्स, जो भी अर्थ के अंदर होता है वो ईट करता है, एंड दैट थिंग्स मीन्स जो अर्थ है इट हेल्प्स टू ग्रो, राइट। राइजिंग आउट ऑफ वो वहीं से होता है, मीन्स जो हमारा जो रूट है, हमारी जो कहते हैं ना अर्थ के अंदर से ही वो ऊपर उठता है। फीडिंग मतलब उसको फीड करवाते हैं, अर्थ ही हमको फीड करवाती है बेसिकली, सो उसको वो फीड करवाते हैं अप इनटू द क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। मीन्स बहुत सालों से ट्री रूट्स एब्जॉर्ब द सनलाइट, बेसिकली द tree absorb the sunlight, air and water, and the earth slowly earth को consume करता है, और ये जब कंज्यूम करता है, ये सारी चीज़ें वो कंज्यूम करता है, देन उसकी ग्रोथ होती है। ऑल राइट, जब वो सनलाइट लेता है, एयर लेता है, आप अपने घर पे प्लांट ग्रो करते हो तो उसको क्या करते हो, उसको प्रॉपर वाटर मिलता है, प्रॉपर सनलाइट मिलता है ना, प्रॉपर फूड, उसको जो भी चीज़ें नीडी होती है वो आप प्रोवाइड करवाते हो, और उन सब से उसकी ग्रोथ होती है। और बेसिकली हम जब किसी प्लांट को खाते हैं तो हम या तो सीड्स लेंगे या उस सीड से उसकी जड़ बनती है। बेसिकली जो जड़ अगर हम देते हैं तो जड़ से ही पेड़ क्या होता है, ग्रो करता है। ऑल राइट, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। सो लेप्रस हाइड मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, मीन्स जो रूट जो हमारा ट्री है, भाई ये जो ट्री है राइट, अब इस ट्री का आप ये देखो, ये जो बाग है राइट, ये जो बाग है ये बाग कहलाता है। अब ये लेप्रेस हाइड है, ये डिसकलर्ड है। जब आपने देखा होगा ट्री अलग अलग जगह से, मीन्स जो इसकी बाग है ये अलग अलग जगह से कलर्ड होती है, मतलब कई जगह पे थोड़ा ब्राउन शेड ज़्यादा लगता है, कई जगह पे थोड़ा ब्राउन शेड कम लगता है, इट मीन्स ये डिसकलर्ड बाग है। अब यहाँ पे लेप्रेस हाइड से मतलब क्या, लेप्रेसी इट्स अ डिजीज, और ये जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन हटने लगती है, और अलग अलग जगहों से हमारी स्किन कहीं से डार्क कहीं से और डार्क ऐसा स्किन हो जाता है। सो इट्स लाइक अ डिजीज। ये कह रहे हैं कि इट्स आउट ऑफ इट्स लेप्रेस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये लेप्रेस हाइड है, आप क्या करते हो, यू जस्ट कट इट डाउन, जस्ट कट इट फ्रॉम द लेप्रेस साइड, जस्ट कट करते हो आप इसकी लेप्रेस साइड को और नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा आप कुछ करते नहीं हो, और डिसकलर्ड बार्क कहलाता है राइट, एंड स्प्राउटिंग लीव्स। अब क्या होता है जब आप इसको कट कर देते हो, अब आफ्टर द कटिंग ना, जब ये कट हो जाता है तो इट्स लाइक ये ऐसा लॉग सा बन जाता है, ठीक है, ये कट के बाद एक ऐसा लॉग बन जाता है। अब इस लॉग पे क्या होगा, जैसे जैसे सनलाइट होगी, इसके रूट्स वाटर और अदर जो भी मटेरियल जो अर्थ उनको प्रोवाइड करवाती है अंडर द अर्थ, वो सब इनको फूड अवेलेबल होगा, मॉइस्चर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, सो ये वापस क्या होगी, इस पर स्प्राउट्स मतलब लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये वापस ग्रो करेगा। ऑल राइट, तो इट इज़ नॉट कि आप उसको एक जैब में एक नाइफ से एक जस्ट कट करके आप उनको कट कर सकते हो, आप सिर्फ उनको क्या कर रहे हो, उनको पेन दे रहे हो। सी जब हमें कट लगता है, when somebody cut down us और सब हमारा नाइफ वाइफ कुछ से जब ब्लीड करते हैं, हाउ वी ब्लीड, इट्स लाइक इट इज़ लाइक वेरी पेनफुल। जब हम ब्लीड करते हैं, ब्लीडिंग होती है, बहुत पेनफुल होता है। इन अ सिमिलर वे जब हम उनको जैब करते हैं या कट करते हैं ट्रीज को, तो उसमें से एक एक रेड कलर का कुछ कलर निकलता है, इट वॉज लाइक कि वो भी ब्लीड कर रहे हैं, सिमिलर लाइक वो ब्लीड हमसे जैसे करते हैं, तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर them also, means for the tree also, because वो भी feel करते हैं right, means they also bleed, they also feeling right, and when you are somewhere causing harm them right, जब हम उनको harm पहुंचा रहे हैं exactly। let's see the next stanza। सो हैक एंड चॉप, सो बेसिकली हैक क्या होता है, कट रफली बाय स्ट्राइविंग हैवी, यहाँ पे HEAVY है राइट, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। सो हैवी ब्लोज, जब उसको बहुत हैवी ब्लो होता है, एंड आफ्टर द वेरी हैवी ब्लो विद नाइफ और विद सम एक्स, एंड आफ्टर वी जस्ट चॉप इट, बट दिस अलोन वोंट डू इट, बट ये सारी चीज़ें इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, ये आप वर्क नहीं करेंगी, नॉट सो मच पेन विल डू इट, बट हम
उनको क्या दे रहे हैं, बेसिकली वी जस्ट गिव देम पेन, नथिंग एल्स, हम उन्हें पेन दे रहे हैं, जस्ट कट इट डाउन. If you want to cut the tree, just cut it roots also, right? thoroughly उसको कट कर दो, जस्ट हाफ कट मत दो. सच है, जस्ट सपोज हमारा हाथ कोई कट कर दे, वी ब्लीड, इट इज जस्ट पेनफुल, इट वॉज लाइक पेनफुल. अब वो डायरेक्ट मार दे तो मर्डर कर दे, वो ज़्यादा बेटर है. आप उसको पूरा मर्डर करो, उसको हाफ में मत छोड़ो. हाफ जब आप छोड़ देते हो तो इट वॉज लाइक वेरी पेनफुल फॉर देम एंड फॉर अस, मीन्स फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. सो द ब्लीडिंग बार्क विल हील. सो बेसिकली द ब्लीडिंग बार्क जो होती है वो हील होती है. जो बार्क है उसकी वो ब्लीड करती है जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग. ऑलराइट, एंड इट्स हील, it's cure timely, and from close to the ground will rise curled green twigs. Green twigs means होता है new branches, right? So आप जब उसे कट नहीं करोगे, प्रॉपरली कट नहीं करोगे, रूट से कट नहीं करोगे, आप रूट नहीं करोगे, सो क्या होगी, ग्रीन लीव्स वापस ट्विग्स होंगी, वापस ग्रो करेंगी. मिनिएचर्स ग्रो, मिनिएचर्स ग्रो मीन्स मिनिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे रूप होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो मीन्स ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल कर बाहर आएंगी. इफ यू नॉट कट प्रॉपरली, which if unchecked will expand again to former size. अगर हम उसे चेक नहीं करेंगे प्रॉपरली और एक्सपेंड नहीं करेंगे तो वो अपने जो जैसे पहले फॉर्मर साइज में था, इट्स अगेन ग्रो इन अ फॉर्मल साइज में, जो पहले जैसे साइज में था वैसे ही वो ग्रो करेगा. ऑलराइट, सो बेसिकली ये इन टू ब्रांचेस में कह रहे हैं कि अगर इफ़ यू बेसिकली वांट टू कट द ट्री, जस्ट कट इट अप, रूटेड करो उसको, नहीं तो वो पूरा कट नहीं होगा, जस्ट उनके लिए पेनफुल हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.